Hello students, you are welcome to my channel Elixir Academy, and today we are starting from the articles. I hope that all of you are learning your best from my channel. Now we start articles. What are the articles? Articles, there are two types of articles. First of all, we have to explain definite and another one is indefinite. Okay, there are two types of article. मीन्स आर्टिकल्स को हमने दो टाइप से डिवाइड किया है. डेफिनेट आर्टिकल, इन द डेफिनेट आर्टिकल द only the, okay, there is no meaning of the. In indefinite there are two another one, a or we say n, okay, in indefinite articles. So you are all clear? Definite and indefinite article, the, a, n. The is the definite, a and n is the indefinite article. The meaning of a and n, if we are talking about a or n, the has no meaning, a and has only one, means for the singular, if we are talking about the singular. Okay, now today we are learning the uses of a and n. Now uses of a and n. First, take an example. This is a pen. A is the article. What is the meaning of this is a pen? यह एक पेन है. A is an article. Okay. Before starting articles, I have to explain one more thing to you. That there are 26 in alphabets in English. There are 26 alphabets in English. Okay. अब आप लोग सोच होंगे मैं ये क्यों बता रही हूँ. ये जरूरी है हमें आर्टिकल्स में ए और एन का यूज करने के पहले. ओके, वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट्स में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं. देयर आर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स. ओके, अब व्हाट आर वॉवल्स? लाइक आवर फिंगर्स इन हैंड, A, E, I, O, U. Okay, these are the vowels A, E, I, O and U. Understood? And except to these, इन सब को छोड़कर जो जितने भी होते हैं अल्फाबेट्स, वो सब होते हैं, इन फाइव्स को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट. फॉर एग्जाम्पल B, C, D, H एक्सेट्रा अप टू जेड तक, इन सब को छोड़ के सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं. नाउ अब वी हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ ए एंड एन. वेयर आर द ए यूज, एन यूज? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द यूज ऑफ ए एंड एन. यूजेस ऑफ, वेयर आर द A or N uses? Understood? A uses where? A uses N. Okay. For singular countable nouns, A and N is used. For example, this is a pen. This is a pen. मतलब जहां हमें कहीं एक चीज की जरूरत होती है वहां पर हम आर्टिकल्स में A का यूज करते हैं. ओके, पहले हम A का पढ़ रहे हैं, A के बारे में पढ़ेंगे. यूज ऑफ A, ओनली A. We are learning about the use of A. This is a pen. Okay. This is a boy. वह एक लड़का है. This is a boy. एक ही लड़का है. ओके, यहाँ पे भी हम A यूज करेंगे. मीन्स हम जब भी हम काउंटेबल चीजें होंगी सिंगुलर चीजों के साथ में हम A का यूज करेंगे, है ना. I give some more examples to you. For example, a boy
लाइक्स अ टॉय, लाइक्स अ टॉय मतलब एक लड़के को केवल एक ही खिलौना पसंद है. अ बॉय लाइक्स अ टॉय, बॉय लाइक्स अ टॉय मतलब यहाँ पे भी ए और ए. टॉय, टॉय भी काउंटेबल है, एक ही खिलौना उसको पसंद है, एक ही लड़का है. ओके, बॉय लाइक्स अ टॉय. नाउ आई गिव यू some more examples for your clarification and understand to you more clearly. A cow means only one cow. We are not talking about cows. Okay, only cow. We are countable. A cow, only one cow. A cow has a tail. Again we use a. Why we use a? Only a cow has a one tail. Because we are talking about one cow. Now, after that, I have give some more things. Singular countable noun means जितने भी countable nouns हैं और जो consonants है, before consonants, आप इधर देखिए यहाँ C है, C एक consonant है, T एक consonant है. They all are consonants ना. एंड बिफोर जैसे मैंने आपसे भी पहले बताया था कि वॉवल्स को बताया था और आपको कॉन्सोनेंट्स को बताया था. तो जितने भी काउंटेबल नाउन है और जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होते हैं, कोई भी वर्ड हो, आप यहाँ देखिए यहाँ सी शुरू हुआ है, यहाँ ए, ये जो टी है, टी भी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है. इनके पहले हमने ए का यूज करा. अब हम ये समझेंगे कि जितने भी काउंटेबल हमारे नाउन्स हैं, सिंगुलर हैं और कॉन्सोनेंट से, तो हम उसके पहले ए का यूज करेंगे. वी आर ऑलवेज यूजिंग ए. ओके, अब हम वॉवल्स की बात करेंगे. वॉवल्स में जितने भी साउंड्स है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देते हैं. जैसे एग्जाम्पल है आवर. आवर का मीन्स होता है घंटा, है ना, घंटा. आवर एच से शुरू हो रहा है. अब हम इसकी आवाज अगर सुनेंगे, हम जो है साइलेंट साउंड होती है ए, साइलेंट साउंड होती है ए. ओके, साइलेंट साउंड होती है ए. हमें जब बोलते हैं आवर, प्रोनाउंसिएशन कैसे निकल रहा है इसका, आवर. ओके, आवर. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. एक डिग्री होती है एम ए. एम एक डिग्री होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स की जैसी डिग्री होती है. ओके, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल जो है वीडियो है, बहुत ही फायदा देगी ये बच्चों को. बहुत लर्निंग इजीली आप इससे सीख सकते हैं. छोटा बच्चा जो मीन्स फॉर क्लास 1st to 6th क्लास की ग्रेड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, दे आर इजीली लर्निंग आर्टिकल्स. एम ए, बेटा एम ए, एम ए. एम ए क्या होता है, हम प्रोनाउंसिएशन एम, ए की साउंड आ रही है. अब जब हमारे पहले मतलब ए की आवाज आ रही है, मतलब ए क्या है, वॉवल है, इसलिए हम इसके पहले भी एन एम ए लगाएंगे. ओके, अगर एक और वर्ड लेते हैं हम एप्पल, तो एप्पल में तो खुद ही ए है और उसके पहले हम एन लगाएंगे, एन एप्पल. व्हाई वी हैव टू ऐड एन, बिकॉज दीज आर द वॉवल्स, ए ई आई ओ यू. पर हम ये बताना चाहेंगे आपको कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जैसे एच वॉवल नहीं है, एच वॉवल नहीं है, बट एच वॉवल नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं कि हम उसके एच के इसलिए लगाए कि एच वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट तो एन लगाया, उसके साउंड पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, है ना. जब हम कोई वर्ड बोलेंगे और उसमें साउंड ऐसा आता है कि हमारा वॉवल का साउंड उसमें सुनाई दे रहा है अगर, तो हम उसमें एन का यूज करेंगे. और वो भी सिंगुलर काउंट है, मतलब एप्पल मतलब एक एप्पल है, एन एप्पल, एक ही एप्पल के बारे में बात करी जा रही है. डिग्री एम ए की होती है एम ए, तो इसमें एम ए में प्रोनाउंसिएशन में पहले ए सुनाई दे रहा है और उसके बाद हमें एम की आवाज आ रही है, एम ए, इसलिए हम उसके पहले वो लगाएंगे. ठीक है, एन लगाएंगे. अब हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं, जैसे है ऑनर. ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना किसी का ना, तो आप लोगों को पता है, HONOUR, ऑनर. ऑनर, ऑनर मीन्स, अब इसमें ऑनर में भी एच की साउंड आ रही है ना. ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाए हैं, इसमें एन लगाएंगे यहाँ पर भी. अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स.
A hunter killed a tiger. A hunter killed a tiger. अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताती हूँ एच और वो उसका। अ हंटर, एच तो आया है पर हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि हंटर में ह की आवाज सुनाई दे रही है, हमें साउंड जो हो रहा है ह, एच के आ रहा है इसलिए। और यहाँ पे ये भी टी जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर अ टाइगर लिखेंगे, अ टाइगर अ लगाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा यूज ऑफ ए, यहाँ पे ए का यूज आ गया। अब हम एन की बात करते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री। अब देखिए यहाँ पर ए भी आया है और एन भी आया है। ओ क्या है, यहाँ पे हम ऑरेंज में बात करेंगे, यहाँ एन के एन लगाया है ऑरेंज के पहले इसलिए क्योंकि ओ जो है वॉवल होता है, और यहाँ पे हमने ए इसलिए लगाया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है टी। तो बिफोर कॉन्सोनेंट्स वी आर यूजिंग ए एंड बिफोर वॉवल्स वी आर यूजिंग एन, एंड बोथ आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ओके, नाउ today we are over our class. Next time I give you some more examples. I think these tricks और जो भी आपको मैंने अभी बताया है, these are helpful for you. And again you are all of you welcome to our channel, YouTube channel Elixir Academy. Okay, thank you so much.